गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हिंदी में ही ना कल की तरह? मिक्स और मिक्स बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते ऑन कंप्यूटर। So we are looking at Bhaj Govindam today, and Bhaj Govindam is a text composed by Adi Shankaracharya, and it was Adi Shankaracharya along with his disciples. He took bath in the Gangaji in Varanasi, and after taking bath in the Gangaji, he was walking through the streets of Varanasi. If you have been to Varanasi, the streets are very narrow. And when he was passing through them, somewhere along the way, he saw outside the house, someone, 65 years old man, chanting अ आ इ ई उ ऊ क ख, संस्कृत के रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामैः. He was learning the repeating at age 65. He is repeating the rules of grammar. And Shankaracharya, out of compassion, while passing, he just said, what did he say? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुंकरणे. He said to him, उसने बोला कि भज गोविंद का नाम भजो, गोविंद का नाम भजो, गोविंद का नाम भजो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम. Why? Samprapte san, your life is coming to an end. You are reaching death very soon, and right now you are busy chanting learning the Sanskrit grammar. This is the time you learn to involve yourself in chanting the name of the Lord. Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam. नहीं ते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंग करणे. This learning the Sanskrit grammar rules or by hearting scriptures, repeating Bhagavad Gita or repeating this or repeating that is not going to benefit you at the end of life. Because a tape recorder also is able to do that. So what is required? You need to percolate your heart. अपने हृदय के अंदर प्रभु का नाम एकदम सीप जाना चाहिए, और उसके लिए हमको भगवान का नाम लेना पड़ेगा. वी हैव टू टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड. सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड योर लाइफ इन अननेसेसरी इंडल्जेंसेस. टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड. फिर here he says 3 times he says, एक ही बार, once only he could have said भज गोविंदम, but why 3 times? 3 times इसलिए क्योंकि हमारा जीवन अब सब कनेक्ट, कल की बात जो हुई ना कर्म के ऊपर, उसमें से कनेक्ट कर लो भी. 3 चीज़ें क्या होती हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. सो तीनों को भज गोविंदन से रम जाओ तीनों में. फिर 3 क्या होता है? व्हाट एल्स इज 3? देयर इज स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी. सटल बॉडी इज माइंड एंड ब्रेथ, एंड Karan Sharir, which is the causal body, which is the Anandmaya Kosh. So 3 bodies, again, bhaja, bhaja, bhaja. Percolate all the 3 with the name of Govinda.
What else is 3? If you remember, कैसे हुआ? बढ़िया. Very good. Maya is 3, Sattva, Rajas, Tamas, isn't it? तीनों गुणों को भगवान के नाम से रम दो. What else is 3? Waking, dream and deep sleep. This is also 3. उसको भी रम दो. What else is 3? Seer, seen, seeing. Experiencer, experienced, experiencing. Karta, karma और the instrument. Not kriya, the instrument. Again 3. In other words, subject, object and instrument through which you function. Again 3. Trilok. हाँ, very good. Trilok. So, the 3 लोक कौन से हो गए? भूर भुवः स्वाहा. The earth, the heavens and the area in between. So, permeate everything. It represents Bhaj Govindam, Bhaj Govindam. Govindam Bhaja Moodhamate. Oh, Buddhu, stupid. Moodhamate means stupid. Moodhamate means Buddhu. कि जो बुढ़ापे में भी याद करने में लगा हुआ है, भगवान का नाम रम नहीं रहा है, तो उसको याद दिला रहे हैं कि तू ये रम, इसमें रम जाओ. And as he said these, then afterwards there are 12 verses that he goes, एक के बाद एक, and he communicates a particular point through the example of that. वो जो बुढ़ा आदमी वहाँ पे बैठा है, उसके माध्यम से जितने उसके डिसाइपल्स उसके साथ चल रहे हैं, उनको वो कम्युनिकेट करते हैं और उसको भी कमेंट करते हैं. एंड द कंपोजिशन इज सो फैंटास्टिक कि द मोमेंट शंकराचार्य कंक्लूड्स, जो बाकी के 4 उनके मेन डिसाइपल थे, they become inspired and each one of them gives 3 or 4 verses. They add it on and that total composition is called Bhaj Govindam. इसका एक और नाम है मोह मुद्गर. मुद्गर means क्या बोलते हैं वो, गदा बोलते हैं ना, गदा मोह, वो गदा जो मोह को, माया को, अपने अज्ञान को उड़ा देता है. तो भगवान के पास आपने देखा होगा, नारायण भगवान के पास शंख चक्र गदा पद्म होता है. शंख किस लिए होता है? शंख इज कॉन्च किस लिए होता है? ही कॉल्स यू, भाई आजा मेरे पास. तुम नहीं सुनते तो काल चक्र दूसरा चक्र होता है. काल तुमको सिखाता है वही कि भगवान के पास जाओगे तो तुम, क्योंकि द टाइम ब्रिंग्स, एवरी टाइम इज़ नॉट अ गुड टाइम. समटाइम्स देयर इज़ लो, समटाइम्स देयर इज़ हाई. फिर भी तुम नहीं सीखे अपने अनुभवों से, समय से तुम नहीं सीखे. फिर उसके बाद गदा आ दी है. हेलो नवतेज, हाउ आर यू मैन? If you had not come to this house, I would not have recognized you. So, मोह मुद्गर, that which removes the मोह, ये मोह माया जो है जिसमें हम फंसे हुए हैं, उसमें से हमको निकाल देती है. तो पहला, तो with this introduction, इसका पहला वर्स जाता है, क्या है? एक मिनट, हाँ. मूढ़ जहि धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज करमोपातं चित्तं तेन विनोदय चित्तं. भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते. तो यहाँ बोलते हैं, O Buddhu, mood jahi dhana agama trishnam. O fool, give up your desire, your lust, your thirst for wealth. आदमी भगवान को छोड़ के, यहाँ पे बात हो रही है भज गोविंदम की, तो वो क्या बोला जा रहा है? भगवान को छोड़ के तुम प्यासे किसके हो? पैसे के. यू आर थर्स्टिंग आफ्टर वेल्थ. योगीज आर थर्स्टिंग आफ्टर द वेल्थ ऑफ सिद्धीज. वी आर थर्स्टिंग आफ्टर द वेल्थ ऑफ मेमोरीज. तो यहाँ पे बोला जा रहा है मूढ़ जहि धनागम तृष्णाम, कि यू गिव अप दिस थर्स्ट फॉर कलेक्टिंग, एक्यूमुलेटिंग, अमासिंग वेल्थ. देन
Kuru sadbuddhim manasi vitrishnam. Kuru sadbuddhim. Bring about a good mind. Develop your mind. For what? Manasi vitrishnam. Develop such a mind which is not getting caught up in this thirst for the objective world. हम दुनिया में जाते हैं, हमारे पास बकेट लिस्ट रहती है कि हमको इधर जाना है, हमको उधर जाना है, हमको बाली जाना है, हमको वियतनाम जाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने कॉट बाइक नहीं किया, हमने व्हेल वॉचिंग नहीं किया. लिस्ट लगी रहती है, कुछ ना कुछ करने की लिस्ट लगी रहती है, पर वो लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती. एक 10 things we have written down in our bucket list, they will conclude very quickly there is another 10 things. And it's a perpetual, you are running after the world to satisfy your senses and your mind. Mind wants to enjoy by involving in the world, but it never gets satisfied. Watch yourself. कल का ही एग्जाम्पल है. You eat a breakfast, lunch, dinner, still today, from childhood till today. That kid, every 2 hours it wants food. Still it is not satisfied. We are eating 3 times. Some of us are doing, what is that called? कौन सा फास्ट बोलते हैं ये? Intermittent fast. So 16 hours we don't eat, but still after that you eat. उसके बाद तो ऐसी भूख लगती है कि you can't stay without eating. So, but is that going to satisfy us? Is that bringing peace of mind? It is not. So what will bring peace of mind? भज गोविंदम. भगवान का नाम लो, भगवान को भाव से पुकारो. भगवान के जो प्यास है, थर्स्ट लिखा है यहाँ पे, जो प्यास है वो प्यास भगवान के लिए होनी चाहिए, प्रभु के लिए होनी चाहिए. That thirst should be for the Lord and not for the world or the objects of the world or experiences of the world. फिर बोलते हैं क्या? यल्लभसे निज कर्मोपातम. And here it is told that yallabase nija karmopatam. Whatever work you are doing, be satisfied whatever results come. But do your work and forget the rest. Do it. How do you do the work? By remembering the Lord, by offering it to the Lord, by seeing the hand of the Lord in whatever work you are doing. That is the attitude that we have to develop. And be content. Our job is, we want to work because we are not content. We want more. We want more. We want more. And that leads to that leads to a disturbed mind. आइए कम. इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. अरे ओम. So be content with what comes to you through actions performed by your own work. In other words, what does it mean? It means don't copy what others are doing. अच्छा, तू भगवान का नाम ले रहा है, ओम नमः शिवाय, मैं भी भगवान का नाम लूँगा. क्यों? क्योंकि मैं अभी तक हरिओम हरिओम बोल रहा था यार, जीवन में कुछ हुआ ही नहीं. पर ये तो ओम नमः शिवाय लेता है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, तो मेरे ख्याल से ओम नमः शिवाय इज़ मोर पावरफुल देन हरिओम. तो दूसरे को कॉपी कर लो. या अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, वी आर नॉट बीइंग ट्रू टू आवरसेल्व्स, बट वी आर ट्राइंग टू कॉपी हाउ सम, नॉर्मली चिल्ड्रन डू दैट. How the father walks, the son also walks. How the mother behaves, the daughter also behaves, till she develops her own personality. But in general, we are always mimicking. हम किसी ना किसी को कॉपी कर रहे हैं और अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उसके पास वो कार है तो मेरे को भी वो कार चाहिए. उसके पास वो घर है तो मुझे भी वो घर चाहिए. उसने वो वाला कपड़ा खरीदा तो मेरे को भी वो वाला कपड़ा खरीदना है. उसके पास, सन्यासियों में भी ऐसे होता है, उसके पास वो वाले कलर के कपड़े, मैं भी वो वाले कपड़े करूँ. वो वाला सिल्क पहनता है, मैं भी सिल्क वाला पहनूंगा इस कलर में. ऐसे भी होता है. वो वाली साधना कर रहा है, अच्छा कौन सी साधना कर रहे हो? अच्छा ये वाली, अरे मैं भी ये वाली साधना, क्योंकि उसके पास सिद्धियाँ आ गई उस साधना से, तो यू कॉपी. ऐसे सब प्रोफेशंस में चलता है. इट्स अ माइंड सेट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. तो इसमें ये बोला है कि वॉट एवर इज नेचुरली कमिंग टू यू इन लाइफ एज वर्क, विच एवर. आ जाओ भाई, आ जाओ राजन जी, हमने शुरू कर लिया. नहीं, उसको बेकार में उसकी गर्दन दर्द हो जाएगी ऊपर देखते देखते. इधर बैठ जाओ.
I can turn the camera towards you. You can give a lecture. अरे, इसको डिस्प्लेस कर दिया. ये भी कम नहीं है, इसको इसकी तरह भी कर सकता हूँ. यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम. With a happy mind, doing whatever work where life has placed you, perform that work happily, and whatever comes as the result of that work, आपकी झोली में जो पड़ता है उसको आनंद चित्त से, आनंदित मन से उसको एक्सेप्ट करो और अपना काम करते जाओ, अपना कर्म करते जाओ. और कैसे कर्म करो? कर्म करते समय भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिम करणे. अब दूसरी एंगल पे लेके जा रहे हैं. कहाँ पे? पहले तो बोला धन के बारे में बताया, अब बताते हैं काम वासना के बारे में. एक मिनट, ये बीच में लोग बोल रहे हैं, इनको मैं ज़रा डिलीट कर दूँ. डिलीट मतलब उनको म्यूट कर दूँ. नारीस्तनभरनाभिदेशं दृष्ट्वा मागामोहावेशम् एतन्मासवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं. भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते. The second challenge after we have, first challenge is whatever is available in the world, the accumulation, greed. अपना काम नहीं करना है, दूसरों को कॉपी करना है. दूसरी बात आती है, यहाँ पे बताया है ये तीसरे श्लोक में, नारी स्तनभर नाभिदेशम. डू नॉट गेट ड्राउंड इन डिल्यूजन. मोह में मत फंसो. क्यों? और कैसे फंसते हैं लोग? चलते चलते लड़की देख ली लड़के ने, या लड़के ने लड़की देख ली, या लड़की ने लड़के को देख लिया. आई थिंक ये अच्छा लग रहा है, ये हस्बैंड क्वालिटी है, ये वाइफ क्वालिटी है, सुंदर है, हाइट भी मेरे जैसी है, जानता वानता नहीं, जस्ट ही हैज कम अक्रॉस समवेयर. एंड whenever you think again and again about something, you get infatuated by it. That is the rule. So be careful what we expose our mind to. So it's a natural inclination for attraction to the opposite sex. वो बुढ़ापे तक नहीं जाता, but you have to cultivate the dispassion or the renunciation from that. You have to rise up. तो वो जो डिज़ायर है ऑपोजिट सेक्स की, उसको, उस एनर्जी को हमको हार्नेस करना है और उसको ऊर्ध्वगामी करना है. ऊर्ध्वगामी मीन्स यू हैव टू रेज इट अपवर्ड्स. एंड व्हाट इज अपवर्ड्स? भज गोविंदम. दैट इज शोन थ्रू क्रिया योग और कुंडलिनी मार्ग. उसमें एनर्जी इज ऑलवेज मूविंग अपवर्ड्स. बट व्हेन वी आर thinking only about the world, that energy is always leaking outwards rather than being harnessed and moving upwards. The joy that one gets after the energy starts rising, it's much more, 1,000 million times more than being in the embrace of the opposite sex. तो यहाँ पे बताते हैं that don't get infatuated and passionate by lusty desires. And whenever we see the opposite sex, वो हो जाता है एतन मांसवसादि विकारम. और इसके बारे में कैसे सोचना है? so that we break the pattern of thinking about opposite sex. इधर बोलते हैं एतन मांसवसादि विकारम मनसि विचिंतय वारम वारम. कि ये जो शरीर है, दिस बॉडी, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? It is continuously modifying. It is made up of what? इसमें पूरी, she says, of 5 elements: space, air, fire, water, earth. But if it is made by space, air, fire, water, earth, you will not feel dispassion towards it. तो यहाँ पे बताते हैं किस चीज़ का बनता है. इस वर्स में नहीं दिया है, but other places it is told. It is made out of blood, bone,
phlegm, urine, fecal matter, and the tissues and muscles. These are the 6 things that go into making the body, and मरने के बाद सब कुछ छूट जाता है. So imagine your body is made up of these 6 things. Every body is made up of these six things, and individually taken, you will not be attracted to mass, you will not be attracted to haddi, and you will not be attracted to blood. But put together, you are saying that it's a beautiful person. I think I can spend the rest of my life with it. तो ये बात इसलिए बताई, ये नहीं बता रहे कि शादी मत करो, ये नहीं बता रहे कि बच्चे मत करो, ये नहीं बता रहे कि फैमिली मत करो, पर ये कह रहे हो उसमें आसक्त मत हो. आसक्ति समझते हो ना? टू गेट अटैच्ड. Don't get attached to it. Don't lust after it. If at all you want to lust after, if we want to use the word, मीराबाई बोलती थी मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई. So she had accepted that Krishna is her husband. So all her love, all her energy, all her effort went into remembering the Lord. Gopis also the same thing. So instead of lusting for the world or the opposite sex, you desire union with the divine, which is more fulfilling. And therefore, bhaja govindam, govindam bhaja moodhamate. नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवितमतिशय चपलम विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं भज गोविन्दं गोविंदम भज मूढ़मते. नलिनी मीन्स लोटस. तो जिस प्रकार लोटस is staying in the dirty waters, it gets nourished by the dirty waters, it survives, it is born from the dirty waters, it lives in the dirty waters, but it is not touched by the dirty waters. पानी उस लोटस के ऊपर, पत्ते के ऊपर या फ्लावर के ऊपर पानी रुकता नहीं, इट फॉल्स अवे. सो इवन दो इट इज देयर, बट इट इज अनटच्ड बाय द वाटर्स. सिमिलरली यहाँ पे बोलते हैं जस्ट लाइक द लोटस, व्हाट डू यू से, एज वाटर ड्रॉप्स ऑन अ लोटस लीफ आर अनस्टेडी एंड ट्रम्बलिंग, इन द सेम वे लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज अनस्टेडी एंड shaky. There is no guarantee which moment we might be taken away from this world. But we live with this hope, wish, probably conviction also, that we are going to live for next 10 years, we are going to live for next 20 years, we are going to wake up tomorrow. See, we are going to wake up tomorrow. But what guarantee, what data do you have to say that हम कल उठेंगे नींद से? कोई गारंटी नहीं है. बट आर वी रेडी? क्या हमारे मन में भगवान का सुमिरन हो रहा है? क्या अजब अजब स्थिति आई है कि अभी भी सोते समय वी आर थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स अबव इंस्टेड ऑफ भज गोविंदम? एंड एट द टाइम ऑफ डेथ, naturally at the time of death, the entire flashback of life, of this life, will be in front of your eyes. It's like a fast forward movie which goes through, and a complete balance sheet of life is presented in front of you. And in that balance sheet, the most intense emotion, the most intense desire which you have cultivated throughout your life, which has not been fulfilled, it will come up. And that will become the impetus. वो कारण बन जाएगी अगला जन्म लेने के लिए. तो क्या हमने अपने आप को ऐसे ढाला है कि हमारे मन में भगवान का सुमिरन आपो आप चले जा रहा है, तो मृत्यु आए तो आए, अपना मन तो उसमें रमा हुआ है. ये बात हो रही है यहाँ पे कि नलिनी जलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवितम अतिशय चपलम. चपलम इज चपलता, मीन्स ट्रेम्बलिंग, इट्स अनश्योर. Our life in this world is unsure. We don't know when we can be taken. This life will be taken away.
So prepare. How? Live in this world like the lotus. Lotus lives in the dirty waters, nourished by the dirty waters, but untouched by the dirty waters. You live in this world which is full of good and bad, full of ugliness and beauty, full of victory and defeat, full of war and peace. Remain untouched by the world like the lotus. So, कोई भी कुछ बोलता है, we don't take it, we don't allow it to stick to our mind. कोई हमको प्रेज करता है तो गीता में बोलते हैं सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युध्यस्व. तो जीवन में कैसे जीना है? इक्वानिमस, एकाग्र, अपने मन को भज गोविंदम पे लगा के. उससे क्या होगा? सुख आएंगे, दुख आएंगे, हमारे को ना एक्साइटमेंट होगी, ना हमारे को डिप्रेशन होगा. विक्ट्री डिफीट में हम समतल हैं, लाभ और हानि में हम सम हैं. तो दैट इज कॉल्ड, coming to this equanimity is called as Nalini Jalagat, is called as living like a lotus in this world, unaffected, untouched by whatever is going on. We are playing our role 100%, but we are unaffected by whatever world is throwing at us, because we have no control over what world throws at us. With that, Nalini Dalagat Jalamati Taralam तद्वज्जीवितमतिशय चपलं विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकशोकहतं च समस्तम्. यावद्वित्तोपार्जनसक्तः तावद् निजपरिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर्जरदेहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे. भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते. यहाँ पे बोलते हैं कि यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक कोई फिट रहता है, जब तक कोई फिट रहता है तब तक आपका रिस्पेक्ट है. जब तक आप पैसा घर में ला रहे हो और बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो तब तक आपकी रिस्पेक्ट है. If you become invalid, if you become, something comes about untowards, immediately यहाँ पे बताते हैं कि the family starts disregarding that person, family starts looking down upon that person, the family starts ill-treating that person. Why? He is not being productive. What are you contributing to the family? Nothing. ना पैसा ला रहे हो, ना खाना बना रहे हो, ना वैक्यूम कर रहे हो. तो why are you here? तो they start looking down. पर जब तक पैसा आ रहा था, there was respect. देखो, मेलबर्न में एक हमारी, मैंने कई पहले भी शायद यहाँ पे बताया कि नहीं पता नहीं, एक माता है, शी वॉज अ महारानी ऑफ समवेयर आउटसाइड महाराष्ट्र में, किसी एक गांव में या शहर में, छोटे शहर में महारानी थी. 21-25 नौकर उसके पास, सर्वेंट्स, 11 cars with drivers, and she is all by herself. Her 2 sons, they were in America, then they migrated to Australia somewhere. I don't know what profession they were in, but they used to say, "Mom, what are you?" And she's a queen. She's a leader. She's a manager. She's a boss. She's not used to doing anything. तो बच्चों ने कहा कि मम्मी आप तो यहाँ पे अकेले हो, हमारे बच्चे यहाँ हैं, हम यहाँ पे हैं, आप वहाँ पे अकेले हो, हम सबको आपको मिलने के लिए आना होता है, आप क्यों नहीं हमारे पास आ जाते? और ये जो आसक्ति है ना, अटैचमेंट टू चिल्ड्रन, सी व्हाट इट डज. सो 1 दिन, 2 साल, 3 साल, आखिर में जब वो थोड़ी बुढ़ी होने लगी, मान गई. पैसा भी बहुत था, सारी प्रॉपर्टी बेच दी, दोनों बेटों के नाम कर दी. कहती अच्छा सब तुम ले लो, मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, अब मेरे पास कितने साल रह गए, आई विल कम एंड लिव विद यू, दैट इज व्हाट यू वांट, यस कम. जैसे ही एयरपोर्ट से आई, तो छोटी वाली ने कहा पहले आप बड़ी वाली के पास रहो. किसने? बहू ने. आप बड़ी वाली के पास रहो.
बड़ी वाली के पास गई, अब उसने कभी अपना ऑमलेट तक खुद नहीं बनाया, चावल खुद बनाए नहीं, कुछ नहीं आता था उसको, सिर्फ ऑर्डर देना आता था। अब इधर आ गई, घर में रही, अब ग्लास तक अपना कभी धोया नहीं उसने, 21-25 नौकर घर में बैठे हैं सब करने के लिए। सो वन डे द एल्डर बहू, शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड, शी वॉज डूइंग अ काउंट डाउन कि इसकी वजह से इतने बर्तन टूट गए, इसकी वजह से मेरे को किचन ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है, इसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है, वो चीज़ हो जाती है। एंड 6 महीने हुए नहीं, लास्ट डे शी सेड, छोटी बहू को बुलाया, अब तेरा नंबर आ गया, अब तू लेके जा। और उसके घर जाके छोड़ दिया। उसको क्या किया, छोटी बहू ने पीछे एक ग्रैनी फ्लैट बना दिया, उस ग्रैनी फ्लैट में वो रहती थी और प्रॉपर हाउस में आके कुछ अपना खाना वाना बना के चली जाती थी। वो भी उनको पचा नहीं। विदिन 6 months, अभी 1 साल भी नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया आके, और उसको जाके डाल दिया नर्सिंग होम में। और नर्सिंग होम में मैं जाके देखता था, उनकी फैमिली जाके नहीं देखती थी। और जब वो गई, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, बच्चे पास में नहीं थे, बाकी लोग थे, जो बूढ़े जो कम्युनिटी जो सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, जाके इनके साथ बातें करते हैं, वो थे उनके साथ। सो यहाँ पे यही बताया गया है, यावद वित्तोपार्जन सकता है, एज लॉन्ग एज यू हैव द एबिलिटी एंड यू आर फिट टू अर्न वेल्थ, टिल देन यू आर रिस्पेक्टेड, तावत निज परिवारो रखता है, मीनिंग टिल देन योर परिवार, योर फैमिली विल रिस्पेक्ट यू, हैव रिलेशनशिप विद यू, विल put you are great, you are this, you are that. Paschat jivati jarjar dehe. And the moment you start becoming incapable of producing wealth, incapable of adding value to the family or the society, आपको निकाल के अलग रख देते हैं। वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे, एंड nobody cares, and nobody, यहाँ पे भी हमको इतने, एक माता जी अभी चली गई, she was a singer and she used to teach singing, and मेरे को किसी ने बताया, स्वामी जी ऐसे हैं, मेरे को बहुत पहले 20 साल पहले मिली थी, तो मैंने कहा चलो, और उसको उसके बच्चे ने गराज में रखा था, और गराज में वो बेचारी अकेली पूरा दिन, गराज में मतलब उसको गराज को घर बना दिया था उसने, कमरा वमरा, बाथरूम, टॉयलेट सब कुछ था उधर बना दिया, but she used to starve to communicate with people. इंडिया में तो इतने लोग होते हैं बात करने के लिए, खिड़की से ही चिल्ला के बोले, अरे भाई बाबा जी कैसे हो, सब बढ़िया है। यहाँ पे तो बाहर आओ, पूरी गली का चक्कर काट लो तो भी कोई नहीं दिखता। अभी कल मैं इसके पास था, रवि के पास, और इसके ससुर और मैं पूरा इनके आपके पूरा वो चक्कर काटा हमने, मेन रोड पे भी गए, एक आदमी नहीं यार। तो हम आपस में ही बात कर रहे थे, तो वही बात हो रही है यहाँ पे। तो यानी तरस जाते हो किसी से बात करने के लिए। कोई बुढ़ापे में क्या चाहिए आपको, कि कोई आपके साथ बात करे, आपके दुख दर्द समझे, आपकी सेवा नहीं चाहिए तो भी ठीक है, पर तुम ठीक से तो बात करो, रिस्पेक्ट देके तो बात करो। हॉस्पिटल में कैसे, हेलो डार्लिंग, है ना, मेरे नाना जी थे, उनको स्ट्रोक आ गया, ही रिकवर्ड फ्रॉम दैट, ही वाज इन द हॉस्पिटल, वो छुटकी सी नर्स, हेलो ग्रैंडपा, हाउ आर यू, हाउ इज द पेशेंट टुडे। अब वो इतने कॉन्डिसेंडिंग वे से बात करते हैं, वो परेशान हो गए, मेरे को घर लेके चलो, ये कैसे बात करते हैं, हैव यू टेकन द मेडिसिन टुडे, आई एम अ स्मॉल चाइल्ड और व्हाट, की छोटे बच्चे की तरह बात कर रहे हैं, तो हमारे को हमसे पूछ रहे हैं। तो बट दैट इज हाउ द सोसाइटी इज। इससे पहले कि यू बिकम misnomer in the society, before people start rejecting you, you tune your mind into भज गोविंदम, कि कोई बोले या ना बोले, आपका कनेक्शन भगवान के साथ है और आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, भगवान आपसे बात कर रहा है, आप भगवान से बात कर रहे हैं, बाकी सब गए कहाँ, भाड़ में। ठीक है।
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवती वायो देहापाये भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते यावत पवनो निवसति देहे, मतलब as long as one is alive, his family members inquire kindly about him and about his welfare. But when the life air stops, अभी मेरे को जिस दिन मैं यहाँ से जाऊँगा वापस मेलबर्न, I am arriving at 11 o'clock on 12th of June. ऑलरेडी बुक हो गया. 3 o'clock मेरे को सत्संग करनी है. क्या करना है? प्लेन से उतर के गाड़ी पिकअप करके सीधे उनके घर जाना है एंड आई हैव टू टॉक ऑन डेथ, क्योंकि उनके माता की यानी शी पास्ट अवे लास्ट वीक, उनकी वाइफ की मदर, तो हमको उनको सत्संग करनी है. दे वांट, दैट इज़ द ट्रेडिशन कि पूजा करते हैं, हवन करते हैं या सत्संग करते हैं 13 दिन या 14 दिन जो भी है. शी हैज़ गॉन टू इंडिया बट ही वॉन्ट्स टू डू इट हियर. तो मैंने कहा ठीक है. तो बट वेन द लाइफ एयर क्या है, तावत पृच्छति कुशलम गे है गतवती वायु देहा पाए. गतवती मीन्स जब प्राण अपने देह में से निकल जाते हैं, व्हेन द लाइफ एयर स्टॉप्स कमिंग इनटू द बॉडी एंड गोइंग आउट ऑफ द बॉडी, भार्याम बिभ्यति तस्मिन् काये. इवन द वाइफ डजंट वांट टू सी द डेड हस्बैंड. ले जाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए. इंडिया में तो इमीडिएटली हम जला देते हैं, यहाँ पे तो रखते हैं तो जब तक कि क्रेमेटोरियम बुक करना पड़ता है. बट मेनी टाइम्स देखा, यहाँ पे भी देखा जाता है या आपने भी नोटिस किया होगा दैट समटाइम्स देयर फैमिली मेम्बर्स डोंट इवन वांट टू लुक बिकॉज ही मस्ट हैव टॉर्चर्ड हर और शी मस्ट हैव टॉर्चर्ड हिम इन देयर लाइफ एंड दे जस्ट डोंट वांट टू. अच्छा हो गया चले जा. अभी यहाँ पे कहाँ पे सिडनी में अभी मैं कहा था, किसी कोई बता रहा था स्वामी जी ये ऐसी ऐसी है एंड इसके हस्बैंड ने इसको बहुत तंग किया पूरी लाइफ और उसको एक दिन रात को नींद में हार्ट अटैक आ गया, चला गया. उसको बैंक अकाउंट का अपने पैसे, हस्बैंड उसको कहता था रोज के $20 दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा. एंड शी वॉज जस्ट हैंड टू माउथ. कुछ भी करना है उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता था हस्बैंड को कि मेरे को पैसे दो, मेरे को ये करना है मेरे को, और फिर अकाउंट कि मेरे को ये पैसे इसके लिए खर्च किए. वो पूछता था कहाँ किए, क्यों किए, किस लिए किए, क्या ज़रूरत थी, इतना महंगा क्यों खरीदा, यहाँ पे इतना सस्ता मिलता है. और जिस दिन वो चला गया, शी वॉज इन हर 45-50 की थी, वो हस्बैंड पास्ट अवे. अगले दिन शी डिडंट, उसने कहा बेटा तू कर ले जो करना है, आई एम हैव. और थोड़ा एब्यूज़, अलग टाइप का एब्यूज़ होगा, तो शी जस्ट लेफ्ट हिम. उसके बाद उसने कहा अच्छा पहले देख लिया क्या क्या है अकाउंट में वगैरह, घर वर बेच दिया, घर अपना एक रखा, बाकी सब इन्वेस्टमेंट वगैरह बेच दिया. तो बेटा तेरे को क्या चाहिए तू ले, तू अपना रास्ता नाप. एंड शी इज़ लिविंग अ लाइफ एकदम 5-स्टार लाइफ. कहाँ पे मेरे को उसको ट्रैवल करना है करती है, जो कपड़े खरीदने हैं खरीदती है, जो गाड़ी चलानी है उसमें जाती है, 5-स्टार होटल में जाके खाना खाती है. कहती है कि मेरे को पूरी ज़िंदगी भर इसने जेल में रखा है, जेल में. देखिए, और हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसे नहीं होगा. आप कल्टीवेट कीजिए अपने आप को ठीक से, अपने आप को कल्टीवेट कीजिए ऐसे ठीक से. यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन. So our value is only as long as we are breathing. The moment we stop breathing, there is no value for us. Even after few hours, the body starts stinking and people don't even want to come close to the body. तो यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलम गेहे गतवती वायो देहा पाये. भार्याम, भार्या मतलब पत्नी, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये. Even the wife runs away from the fear of the dead body. She doesn't want to touch, she doesn't want to come close to it. और इसके बाद बोलते हैं
अब ये अपनी अपनी जर्नी, अपनी लाइफ जर्नी बताई जा रही है यहाँ पे, अपना लाइफ का ब्लूप्रिंट क्या है, अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान का नाम लिए बिना, संस्कारों को फॉलो किए बिना, परमिंदर की फैमिली में और इधर जितने जिनको मैं मिला हूँ सबका अच्छा है, गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुमुख भी हुए हैं कई लोग यहाँ पे, हाँ, बट मेजॉरिटी आप बाहर देखो मुड़ के तो क्या है, पूरा बचपन हमारा चला जाता है सिर्फ खिलौनों के साथ खेलने में, भगवान का नाम नहीं लेते। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उनके ऊपर संस्कार नहीं करते, भाई उनको गायत्री मंत्र में इनिशिएट करो या गुरुमुख करो, बाकी चीज़ों में सारा इंटरेस्ट है, लेकिन दैट विच इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू उसमें हम डिले करते जाते हैं। फिर जो हमारा यूथ है, बालस्तावत क्रीडासक्ता, मतलब बचपन में हम क्रीड़ा करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तरुणास्तावत तरुणीसक्ता, और जब हम यूथ हो जाते हैं तो हमारे को सिर्फ ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन रहता है, उसी में लगे रहते हैं, इस गर्लफ्रेंड्स में, बॉयफ्रेंड्स में, भगवान का नाम नहीं लेते। और अगर उस समय यूथ में भगवान का नाम ले लेते तो मैं ये नहीं कहता कि सन्यासी बन जाओ, लेकिन पर मेरी साधना यूथ में ही शुरू हुई। पर यूथ में यू कलेक्ट योर एनर्जीज, कलेक्ट योर वाइटैलिटीज एंड अप्लाई टू भज गोविंदम, टूवर्ड्स गोविंदा। और एक बार वो फाउंडेशन बन गई, उसके बाद संसार तो जीना ही है, अपना जीवन तो जीना ही है, अपना प्रोफेशन तो करना ही है, शादी करनी है, बच्चे होने हैं। पर एक बार वो फाउंडेशन आ गई यूथ में, दैट यू आर क्लिक्ड विद द डिवाइन इनसाइड योर हार्ट, उसके बाद जीवन एकदम मस्त हो जाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः, वृद्धस्तावत् चिंता मग्नः। तो बच्चा क्रीड़ा करता रहता है, खेलता रहता है। तरुण मतलब यूथ, इन यूथ यू कीप थिंकिंग अबाउट ऑपोजिट सेक्स, एंड इन ओल्ड एज व्हाट डू यू डू? इन ओल्ड एज यू ओनली कीप वरिंग अबाउट आगे कैसे होगा, ये कैसे होगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, काश मैंने उधर बच्चों के साथ ऐसे किया होता, काश मैंने इन्वेस्टमेंट ऐसे किया होता, काश मैंने खाना ठीक खाया होता, काश मैंने अपनी लाइफ इस तरीके से जी होती। बट दैट इज़ ऑल इन रेट्रोस्पेक्ट। और यही चिंता, क्योंकि हमने अपने मन को प्रभु में नहीं लगाया है, उसके पास दूसरा एक ही ऑप्शन बच जाता है, क्या? चिंता। चिंतन करो या चिंता करो, न चिंता इज चिंतन। चिंतन होता है जब हमारा ध्यान प्रभु के निकट रहता है, और जब हमारा ध्यान जगत के ऊपर रहता है तो हमारी चिंता शुरू हो जाती है। और चिंता कैसे होती है, ये 3 एग्जाम्पल्स दिए थे। बचपन में हम खेलते रहते हैं, यूथ में हम ऑपोजिट सेक्स के लिए होते हैं, और ओल्ड एज में हम सिर्फ चिंता करते रहते हैं। उसके परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः, कोई भी इस तीनों अवस्थाओं में, बाल यूथ में और ओल्ड एज में, कोई भी पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन ही नहीं कर रहा है, कोपि न सकता है। नोबडी इज थिंकिंग, नोबडी इज गेटिंग अटैच्ड। ऑल दिस डाटा प्रीवियस अभी जो 6 वर्सेस हुई हैं, श्लोक जो हुए हैं, ये सब हमको दिखता है अपने जीवन में, लेकिन कोई भी सिस्टमैटिकली इंटेंशनली भाव सहित प्रभु के प्रति या परमात्मा में आसक्त नहीं हो रहा है। अभी भी भगवान का नाम ले रहे हैं, और इतने में किसी ने बोला आ जाओ जी, चाय बन रही है, पकोड़े बन रहे हैं। भगवान का नाम इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। फर्स्ट कैजुअलिटी, पहले चाय कॉफी, हाँ बाद में हो जाएगा। भगवान, पूरी जिंदगी पड़ी है भगवान का नाम लेने की। पकोड़े और वो भी बुला के कोई चाय और पकोड़ा दे रहा है, ये तो बहुत रेयर होता है, मांगना पड़ता है ऐसे मौसम में। तो यहाँ पे बोलते हैं परमे ब्रह्मणि, परम पद वो एक
वही ब्रह्मन है, वही इनफाइनाइट रियलिटी है, उसके बारे में वो कोई भी चिंतन नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। काते कांता कस्ते पुत्रः, संसारोऽयमतीव विचित्रः। कस्य त्वं वा कुत आयातः, तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, काते कांता, हु इज योर वाइफ, काते कस्ते पुत्रः, ये तुम्हारे पुत्र कौन हैं। संसारोऽयमतीव विचित्रः, कि सुप्रीमली वंडरफुल इज संसार, द सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तुम किसके हो, तुम अपनी पत्नी के हो, तुम अपने बच्चों के लिए हो, या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए हैं, या पत्नी तुम्हारे लिए है। अभी हमने पहले देखा, मर गया तो देखना भी नहीं चाहती, या कोई मर गई तो आदमी देखना नहीं चाहता, नहीं जाने दो यार, बॉडी को भी नहीं टच करना चाहते। डॉक्टर्स की बात अलग है, हमारे की बात करते हैं। हाँ? तो इस तरीके से अपना जीवन चल रहा है, पर सीखता कोई है नहीं। और यहाँ पे बोलते हैं कि तो सच क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर वाइफ। इज योर वाइफ लविंग यू बिकॉज शी लव्स यू, और शी इज लविंग यू बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग फलूस इनटू द हाउस। Is the child loving you because he loves you as a person, or is he loving because you are paying his school fees and washing his clothes and ironing his clothes and providing accommodation and all that? सोचने वाली बात है। In the end, आदमी सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करता है। Every person loves himself or herself the most. So if I am in relationship with you, or you with Parminder or anyone, it is for my sake, not for his sake. This relationship is why it is continuing, because it benefits me. You are coming here not because of my sake. You are coming here because सत्संग है, हमारे को benefit होगा, अपना एक घंटा टाइम पास हो जाएगा, कुछ अच्छा सुनने को मिल जाएगा। क्या हुआ कंक्लूजन? इट वॉज योर बेनिफिट। मेरा क्या बेनिफिट है? मेरा भी टाइम पास हो रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं, सुमिरन हो रहा है, तो मेरा भी। तो एवरी वन इन लाइफ इज ओनली थिंकिंग अबाउट देमसेल्स, इन लव विद देमसेल्स। बहुत रेयर केसेस होते हैं जो दूसरे के लिए अपनी जान छिड़क दे, बहुत रेयर होते हैं, अरे कोई नहीं करता। तो यहां बोलते हैं, तो तुम किसके हो, हुम आर यू, तुम अपने हो कि तुम दूसरों के हो। अगर दूसरों के हो, क्या तुम अपना जीवन न्यौछावर कर दोगे? तो एक स्टोरी आती है, आपने रामायण तो नाम सुना है ना? हाँ, रामायण है। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने, ऋषि वाल्मीकि ने। ऋषि वाल्मीकि क्या थे? उनका नाम था रत्नाकर। और रत्नाकर क्या थे? वो डाकू थे और मर्डरर थे। तो उनकी बीवी थे, बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थे, माता पिता साथ में थे, और अपना लोग किसी का गला काटो, किसी को लूटो, किसी को छेड़ो, किसी को कुछ ना कुछ उनका चलता था। रोज इतना सामान घर ले आते थे, पैसा ले आते थे, सोना ले आते थे। तो एक दिन जब जा रहे थे, उनको मिल गए नारद मुनि। एंड नारद मुनि तो अपने ऐसे भगवे वस्त्र में और एक वीणा पकड़ी हुई है। कहा, साधु अपनी वीणा दे मुझे। कहता है, नहीं, मुझे जो कुछ तेरे पास है वो मुझे दे। कहता है, मेरे पास तो सिर्फ वीणा है, तेरे को वीणा बजानी आती है? नहीं, ये थोड़ी महंगी लगती है। कहाँ, तू ले ले। तो किस लिए कर रहा है? कहता है, नहीं दोगे तो मैं मार दूंगा तुम्हें। अच्छा, तू मार देगा मेरे को? ऐसी बात है, तो किस लिए मारेगा? कहता है, मैं अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मेरे को उनका खाना पीना, उनकी जो इच्छाएं उनकी वो पूरी करनी है। और ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं घर का आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, और मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के प्रति ड्यूटी करूँ कि उनको जो चाहिए उनको प्रोवाइड करूँ। पर कहता है, तो नारद मुनि ने कहा, हाँ करना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, जो करना चाहिए, पर क्या ये धर्म एक्सेप्ट करता है? कहता है, क्या मेरे ड्यूटी मेरी फैमिली की तरफ है? और वो
और वो ड्यूटी करने के लिए मेरे को प्रोफेशन पता है, मारो कूटो और लूटो। तो कहता है तो तेरे को पता है कि ये गलत है, फिर भी तू ये धर्म कह रहा है कि ये तेरी ड्यूटी है, तो ये जो तू लूट के लेके जा रहा है, उसके लिए जो बुरे कर्म कर रहा है, क्या तो इसकी वजह से तो तेरे को नरक जाना पड़ेगा। कहता है अच्छा, तो क्या तेरी फैमिली जो तू जो लेके जाता है वो खाती है और खर्च करती है, क्या वो भी तेरे साथ नरक जाएंगे? मैंने तो ये प्रश्न कभी पूछा ही नहीं, मेरे दिमाग में आया ही नहीं। ये सत्संग हो जाता है। तो नारद जी ने कहा तू मेरे को, कहता आप भाग जाओगे? कहता बांधे मेरे को इधर पेड़ के साथ। उसने नारद जी को पेड़ के साथ बांधा, घर पहुंचा, घर में जाके बोला बीवी मैं तो इतने साल किया है, तेरे को सब कुछ जो चाहिए था तेरे को दे रहा था, मैं ला रहा था, कभी कोई प्रॉब्लम? कहती है नहीं। आज क्या लेके आए? आज क्या लेके आए? कहती है नहीं, मैं आज सोच रहा था कि यार मैं ये सब कर रहा हूँ, लूट मचार कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से अब मेरे को नरक जाना पड़ेगा। तुम मेरे साथ तुम थोड़ा मेरा 50% तुम पाप ले लो, क्योंकि ये तो गलत कर रहा हूँ ना मैं। कहती है ये तो मैं क्यों पाप लूँ? यू आर द हस्बैंड, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, तुम्हारी ड्यूटी है, मेरे को क्यों नरक भेज रहे हो? तुमने पाप किया, मैंने थोड़ा ना बोला था कि तुम लूटो जाके, मैंने थोड़ा ना कहा था कि तुम ये पाप करो। नहीं, मैं नहीं जाने वाली। फिर उसने अपने बेटे से, अपने उस बीवी के पहले माता पिता से पूछा। माता पिता कहते हैं यार हम ऑलरेडी मरने वाले हैं, ज़्यादा दिन नहीं रहे, तो हमको अभी से नरक में भेज रहा है, हम नहीं जाएंगे, हमें माफ़ कर, हमको आराम से अपनी ज़िंदगी बिताने दे जो बची हुई है। ये तो बाकी जो ज़िंदगी है, हमको नरक जाना, हमको ना, वैसे ही हम परेशान हो जाएंगे, जो थोड़े साल जीने हैं हम कल ही चले जाएंगे। फिर अपने लड़के के पास गया। लड़का कहता है डैड मेरे पास तो आगे पूरा फ्यूचर है, आप मेरे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, आप सिर्फ ये देख रहे हो, हाउ सेल्फिश यू आर, कि आप नरक जाओगे इसलिए मैं आपका नरक, मेरे पास तो पूरा लाइफ है आगे, मैं नहीं, आप मेरे को माफ़ करो। फिर उन्होंने अपनी लड़की की तरफ देखा जो उनको बहुत प्यारी थी, लड़की को देखा, लड़की ने डैड को देखा, वो प्रश्न पूछने से पहले ही वो उसके गंगा जमुना सरस्वती बन गई। तो इनका जो मोह था पूरा टूट गया। एंड ही केम बैक टू नारद मुनि, ही सेज यार मैंने अभी तक सोचा था कि मेरी फैमिली मेरे लिए है, जो कुछ मैं करूँगा मेरे साथ वो 50 पूरा 100% मेरे साथ है, पर अभी तुमने मेरे से कहा कि जाके पूछ लो, तो मैंने पूछा तो पता चला कोई भी मेरे साथ नहीं है, मेरे को तो जो मैंने कर्म किए हैं उसका भुगतान मुझे ही करना पड़ेगा। आई विल हैव टू अटोन फॉर ऑल द सिंस दैट आई हैव कमिटेड। आप बताओ कैसे करना है? कैसे करना है? हाँ तरीका है, राम का नाम लो। कहती है किस कौन है राम? कहते भगवान है। भगवान का नाम मैं नहीं ले सकता, मैंने इतने पाप किए हैं, मेरे को बहुत गिल्ट फील होता है भगवान का नाम लेने से। तो संत ऐसे होते हैं, उन्होंने कहा अच्छा राम नहीं ले सकता, तेरे को क्या आता है? कहता है मारना आता है। अच्छा तू मरा मरा मैं बोल, तो मरा 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 वो राम हो गया। और वो मर्डरर, वो लूटर, कुछ वर्षों में, कुछ जितने भी उसने साल तपस्या की, वो वाल्मीकि ऋषि हो गए। देखो, और ये वाल्मीकि ऋषि, ये परिवर्तन अपने जीवन, उनके जीवन में जो हुआ वो परिवर्तन अपने जीवन में भी हो सकता है। पर अपने को, जो हमने अभी पहले श्लोक बताए, कहाँ कहाँ हम फंसे हुए हैं, उसमें से हट के, उसमें रहते हुए, क्योंकि ये तो संसार है, उसमें रहना है। लेकिन कैसे? नलिनी दलगत जलमति तरलम, जैसे एक लोटस, एक कमल का फूल जैसे गंदगी में रहते हुए उससे प्रभावित नहीं होता, वैसे हमको इस संसार में रहना है और उसे प्रभावित नहीं होना है। कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। तुम कहाँ से आए हो? कस्य त्वं कुत आयातः, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? तुम पैदा हुए थे कि तुम मरने वाले हो? तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है? तुम कभी सोचा भी है
कि बस एक डिफ़ॉल्ट में अपना जीवन चले जा रहे हो। रोज़ सुबह आते हैं, अपने आप ब्रश, सोचता भी नहीं, ब्रश होता है, टॉयलेट पे बैठते हैं, फ्लश दबाते हैं, उसके बाद सीधे बाथरूम में घुसते हैं, शावर लेते हैं, उस शावर में भी अपने हैंड मूवमेंट सब फिक्स्ड हैं, कट 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 कट, इतना 5 मिनट में बाहर या 10 मिनट में बाहर, उसके बाद कप टॉवल से पोंछते हैं, वो भी सेट। इस तरीके हर एक कोई अपना अपना तरीका है उसका पोंछने का, बिल्कुल सेट, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो भी अपने आप हो जाता है। उसके बाद हाँ भाई चाय हुई कि नहीं, रोज़ का वही चिल्लाना और फिर सब कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, सब कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चल रहा है। तो तुम कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आर यू अ मशीन और आर यू अ लिविंग पर्सन? Living person is conscious every moment. Even when default is settings are there, he is conscious of the default settings, and he keeps what you call being aware of those actions which are taking place. और उसमें फिर डिप्रेशन नहीं आता, फिर आनंद आता, अरे यार ताला मन फिर वही कर रहा है जो इतने सालों से कर रहा है, आनंद आ जाता है। पर जहाँ मैकेनिकल हो जाता है, एक उदासीनता आ जाती है, और जहाँ उदासीनता आ गई, यू लूज द प्लॉट ऑफ लाइफ एंड इट लीड्स टू डिप्रेशन। फिर चिड़चिड़पना, इरिटेशन, क्योंकि रस ही नहीं है जीवन में, चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। रोज सुबह से शाम तक एक सेट रूटीन बना हुआ है, वही इट्स लाइक अ रिप्ले एवरी डे, कटक 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 कटक। स्क्रिप्ट आती है, मेडिसिन बनती है, हाँ उसको बोला जाता है, वो डिस्पेंस करती है, या पेशेंट आता है उसको देखा जाता है, उसको दवाई दी जाती है, प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, हाँ नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट। डिफ़ॉल्ट से नहीं, इसमें हम अगर अवेयर रह सकें, इसमें अगर हम कॉन्शियस रह सकें, इसमें अगर हम जागरूक रह सकें हर क्षण, और वो जागरूकता कैसे आएगी? या तो आप अपना आत्मचिंतन करो सब कुछ करते हुए, या प्रभु का नाम लेते रहो सब कुछ करते हुए। तो यहाँ बोलते हैं तब तत्वम चिंतय तदिह भ्राता। इन मेलबर्न हम क्लास में बताते हैं कभी कभी कि एवरी 10 मिनट्स यू टेक अ ब्रेक, 10 सेकेंड ब्रेक, एंड कम बैक टू योर सेल्फ। हाँ, डॉक्टर्स भी आते हैं हमारे इसमें, तो उनको बोलते हैं कि बिटवीन द पेशेंट्स डोंट लूज द प्लॉट, come back to yourself, that I am conscious, that I am watching, the mind is thinking. Or if you can't do that, come to watch the breath. Sit still, body को मत हिलाओ, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, हर पेशेंट के बीच में, हर स्क्रिप्ट के बीच में, हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में अगर ये कर लिया, you are reminding yourself कि this is more important than everything else. और ये आदत फिर एज वी गेट ओल्ड, इट विल हेल्प यू एज यू गेट ओल्ड। वो चिंता सकता नहीं होगा, वृद्धस्तावत चिंता सकता, फिर मन में डिप्रेशन नहीं आएगा, आनंद, मस्ती। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंद, बस एक दो और फिर कंक्लूड करते हैं। हाँ, यहाँ पे फिर यहाँ पे अभी कंक्लूड करते हैं। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुंकरणे। सत्संगत्वे, कल किसी ने पूछा स्वामी जी सत्संग का मतलब क्या है? तो सत मतलब ट्रुथ, रियलिटी, और वो रियलिटी इज नॉट अ कंसेप्ट, वो रियलिटी इज नॉट अवे अबव द क्लाउड्स। दैट रियलिटी क्या चीज़ होती है? जो कभी रुकती नहीं है, जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, जो कभी आती और जाती नहीं है, जो कांस्टेंट है, जो सब चीज़ों का फाउंडेशन है, वो रियलिटी है, वो सत्य है। और वो सत्य क्या है? ये आत्मा सत्य है या प्रभु सत्य है, दोनों में से ले लो। सत्संगत्वे, संगत मतलब बी इन द कंपनी ऑफ ट्रुथ। या तो तुम अपने आप उसके साथ लगे रहो, उस सत वस्तु के साथ,
और अगर नहीं लगता है तो ऐसी कंपनी में रहो जहाँ उसका चिंतन होता रहे, जहाँ उसका सुमिरन होता रहे, जहाँ उसका प्रवचन होता रहे। तो बी सराउंडेड, बी मेक योर सेल्फ अवेलेबल जहाँ पे विथ सच पीपल और सच प्लेसेस जहाँ पे प्रभु का नाम लिया जाए या सत्संग होती हो। उससे क्या होता है सत्संग होने से? निस्संगत्वम। जैसे जैसे हमारी अटैचमेंट इस सत वस्तु, इस प्रभु के नाम से, भज गोविंदम के साथ वी गेट अटैच टू भज गोविंदम या आत्मा के साथ, उतना हम संसार के प्रति नीरस हो जाते हैं। हम यहाँ पे क्या नाम लिया है? निस्संगत्वम। हमारी संगत संसार से कटनी शुरू हो जाती है और हमारी अटैचमेंट प्रभु के साथ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। फिर निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। फिर जब दुनिया की संगत आपकी छूट जाएगी, मतलब दुनिया की संगत छूटना मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया में नहीं रहोगे, इस संसार में रहोगे, अपने पति पत्नी के साथ रहोगे, अपने बच्चों के साथ रहोगे, लेकिन उनसे परेशान नहीं होगे। क्यों? अपना मन लगा हुआ है प्रभु के सुमिरन में। तो जब ये हो गया, इसके बाद क्या बोलते हैं? निस्संगत्व निर्मोहत्व में। ये जो मोह माया का जो चादर हमारे मन के ऊपर चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारा नहीं है उसको हम अपना बनाने में लगे हुए हैं। इस सृष्टि में, इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अपना बोल सकते हो। अभी हमने पहले देखा था, हर एक कोई भी रिलेशनशिप करता है या किसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व होता है अपने लिए, फॉर हिमसेल्फ। तो एक बार ये पता चल गया कि ये पूरी सृष्टि जो है, ये क्या कहते हैं, ये सत्संग में पता चलता है। तो पहले दुनिया के साथ, संसार से निस्संगत्व आ जाती है। निस्संगत्व से हमारा जो क्या द मैट्रिक्स कोलैप्सिस। मैट्रिक्स कोलैप्सिस, ये जो हिप्नोसिस है, माया का जो हिप्नोसिस है, हमारे मन के ऊपर जो एक चादर चढ़ी हुई है अज्ञान की। और वो अज्ञान क्या है? अज्ञान यही है कि मैं अपने आप को पहचान नहीं पाया हूँ, इसी का अज्ञान है। और क्योंकि मैंने अपने आप को पहचाना नहीं, मैं अपने आप को रेफरेंशियल पहचानना चाहता हूँ। मैं इसका दोस्त हूँ, तो मेरी रियलिटी क्या हो गई? मैं इसका दोस्त हूँ। अब कल इनसे मिला, अब मेरी रेफरेंशियल रियलिटी हो गई, अच्छा इसके साथ मैं इसका भी दोस्त हो गया, या अपनी माँ का बेटा हो गया, या अपने भाई का बड़ा भाई हो गया। तो दिस इज ऑल रेफरेंशियल एग्जिस्टेंस। बट एक्चुअली मैं कौन हूँ? अगर ये कोई भी नहीं है, किसी के साथ मैं रेफरेंस नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ दुनिया पूरी मेरे मन में से निकल जाती है, रात को सपने में नहीं, नींद में मेरे मन में कोई, ना मेरी माँ, ना मेरा बाप, ना मेरी पत्नी, ना मेरा पति, ना मेरे बच्चे, ना मेरा पैसा, ना मेरा घर। मेरे को नींद में तो मेरा शरीर करके भी या मन में कोई विचार नहीं आता ना, तो कुछ भी नहीं है, एकदम मन जीरो है। क्या मैं हूं कि नहीं हूं? मैं हूं। तो वो कौन है जो बिना किसी रेफरेंस के भी है? इसके बारे में चिंतन करना है। तो वो बोलते हैं, ये जो मोह है जिसकी वजह से हम संसार के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं कि हमारा कुछ अस्तित्व हो, हम कंप्लीट होना चाहते हैं, इसको भी लेके सबको लेके। लेकिन ट्रुथ क्या है? कोई भी हमारा नहीं है। ये एक दृष्टिकोण है। मैं दूसरी तरफ से भी देख सकता हूँ कि सब कोई हमारा है, वो बाद में आएगा। पहले आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचान के फिर उसका जो एक्सपेंशन होता है कि सब कुछ मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं, मैं ही सब में हूँ, वो बाद में दृष्टि आती है। पर पहले संसार को देखते रिलेशनशिप्स में रहते अगर हम सोचें कि इन रिलेशनशिप से, इस संसार से हम कंप्लीट हो जाएंगे, ये कभी नहीं होने वाला है। इसी को बोलते हैं माया का पर्दा। और ये सत्संग में निकल जाता है उन भगवान की कृपा से, अगर हम अपने आप को सत्संग के लिए प्रस्तुत करें तो। निर्मोहत्व निश्चल तत्वम।
जब तक हम संसार के बारे में सोचेंगे तब तक हमारे मन में संसार के विचार आते रहेंगे। अब हमने आसक्ति छोड़ दी संसार की, अब हम भगवान में आसक्त हो गए। वी हैव गॉट अटैच्ड टू भगवान एंड वी हैव स्टॉप्ड बीइंग अटैच्ड टू द वर्ल्ड। तो नाउ द थॉट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लेस इन योर माइंड। थॉट्स ऑफ द गॉड और थॉट्स ऑफ द सेल्फ, ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑफ ट्रूथ, सत्संगत्व बोला था ना, ऑफ द ट्रूथ आर मोर इन योर माइंड। यू आर कॉन्टम्पलेटिव एंड अ पॉइंट कम्स निश्चल तत्वम। एक समय ऐसा आता है इस आत्मचिंतन में कि अपना मन पूरा निश्चल हो जाता है। निश्चल मतलब देर आर नो वेव, थॉट वेव्स ऑन द ओशन ऑफ द माइंड। एंड वंस एवरी थॉट वेव ऑन द ओशन सबसाइड्स, एक अज्ञानी नींद में चला जाता है और एक ज्ञानी आत्मा में स्थित हो जाता है, और उसी को बोलते हैं जीवन मुक्ति। और आगे बोलते हैं निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। रिपीट आफ्टर मी। भज गोविंदम भज गोविंदम। बोलो। मैं जितना बोलता हूँ उतना बोलो, फिर मजा आएगा सुनने में। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहि नहि रक्षति डुक्रुङ्करणे, नहि नहि रक्षति डुक्रुङ्करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ये वाला मंत्र बोल रहे हैं, एक ओंकार बोले। हाँ, जो सब यू टेक द लीड, या यू टेक द लीड। मेरे को सीक्वेंस पूरा नहीं पता। हाँ, एवरीबॉडी। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अजूनी भंग प्रसाद जप। सच जुगाद सच है भी सच, होशी भी सच। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, नानक देव की जय। हरि ओम।